So, this is the new episode of Figuring Out series where we are inviting some authors who are so underrated and also वो सोसाइटी के लिए कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं, दैट इज एंड वो जो चेंजेस ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी as well as in this conversation we are going to do some insightful conversation about the event that is happening in Jantar Mantar and more about wanted to know about something about the book that has author has been published. I just want to warm welcome to the author in this Figuring Out series, and this is our 158 series uh, of episode. And thank you, ma'am, first of all, to joining this conversation. First of all, we just want to know something about your book, about the concept behind the book. After that, we will dive more into the concept of the book. A very heartfelt thank to you, Vikrant, and your team for all the support and everything. And the book is all about life, a date with myself. It is very self-explanatory that people are taking life very, very seriously and also on the very sad story type. But actually, life is like a party. So whenever you take out your time to go for a party, you prepare for it, you enjoy the time, and you come back, and then you again go back into the same story. But what if the whole life is like a party? So the book is all about having an enjoyable life full of ease and joy. Okay, that is great. Uh, First of all, I just wanted to know something about the designing of the cover क्योंकि फॉर्चुनेटली हमने आपकी बुक पब्लिश की है एंड आपने हमसे काफी मेहनत कराई है कवर डिजाइनिंग के लिए और वो मेहनत दैट इज एक्चुअली वी कैन एबल टू सी इन द कवर डिजाइनिंग. सो व्हाट इज योर थिंकिंग बिहाइंड डिजाइनिंग द कवर? See, I very well had the picture in my mind before. This girl is actually going beyond the horizon. It is actually a girl holding a book. She is looking forward for a bright sun and a sky full of flowers and the fragrance all around. So the picture itself says that it is such a positive thing and full of life and happiness. The book cover is very beautifully designed. Thank you so much for that. It is full of colors, flowers, and the life all around. There is nowhere a scope of sadness or anything which can stop the feeling of being happy. Yeah, so actually, this is the great explanation. Apart from that, ma'am, we just wanted to know something about the inside of the book. If someone wants to buy the book, and first of all, where they can able to find your book, and why the people needs to buy your book and read the book at least once in their life. I am highly delighted to see the feedbacks as of now. It's not really very long time that the book has been launched. It's only, I think, week's time. Mhm. And a few of my known people have already gone through half of the book. And I keep on receiving the calls and the feedback, which is from them, no biasness. So they are saying that the book is really changing their lives and changing their mindset. They are able to shift their thinking and they are able to change the lifestyle, the process of their thought, what they were thinking before, and now what is to be done to create a beautiful life. So I would really recommend everyone to go through the book once to see what is the difference that you would like to create and what you are doing presently and what is to be needed. There is no force that you change yourself, but at least you go and read. If that inspires you, that will be a gift to me. Yeah, and I think it is not too well too big book. I think it is just Yeah, it is. It is very.
doable and very easily readable. So the thought process behind writing this book in a very a few pages, and that is only 100 pages, and it is covering only in 13 chapters. So I have got a positive feedback that people are excited to read such a small book and create the change, because it is not that book of 500 pages which is to be like bought and kept, कि वो हमेशा उसको बस रख दें और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें और वो बुक कभी पूरी ही भी नहीं हो पाती. But this book is definitely readable in a week's time or a 10 days time. And every day when you read a chapter, you have something to practice in your head and heart. Yeah, actually, this is absolutely right because while we are designing the manuscript, we also feel that, and also one of the important thing is someone don't have much time to read 100 pages as well. You can just open a one chapter, you can read it, and you can finish the chapters in a few pages, and that is also enough for your complete day. So if you want to start, Exactly. yeah, so I think as per my suggestion, if someone wants to start a day with a good vibes, that the person then they can actually read the book. After reading the book, आपको I think आपके दिन में जो भी आप काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम है या फिर आप एक स्टूडेंट हैं या कॉलेज जा रहे हैं, that will be absolutely change your mindset of living that particular day. Whenever I was thinking the chapters when I was writing, and I had every age group in my mind, even housewives and businessmen and the senior citizens, they can also go through the book because this is all about life and everybody is going through the same process. हम सबकी जिंदगी में फेजेस आते हैं ऊपर नीचे. हम लोग मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी काम में. तो इस बुक में जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ चेंज कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो. Yeah, that is actually very right. And now the most important thing कि जब आपने एक बुक को कंप्लीट कर रहे थे like every book has some behind the story okay of the author of the writer. So during writing your story what is in your mind कि आप क्या सोच रहे थे उस बुक को लिखते वक्त. गुड क्वेश्चन विक्रांत. बिकॉज जब कोई लिखता है, एंड आई एम श्योर वी थिंक एवरी डे, हम सब कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं. और इस बुक के आसपास जो भी चीजें मैंने लिखी है, दैट इज वेरी वेल सेल्फ एक्सपीरियंस्ड. इसका एक एक वर्ड और एक एक पैराग्राफ, इट इज सेल्फ एक्सपीरियंस्ड. कुछ गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, कुछ नॉट सो गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, और वो हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है. वी गेट द लर्निंग्स फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस. सो ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, ऑल दोज थॉट प्रोसेस, ऑल दोज अवेयरनेसेस, आई वुड से, जो भी एनलाइटमेंट आती है, वो डेफिनेटली मैंने उस बुक में मेंशन करी है, ताकि जब आप उसको पढ़ें तो आपको कुछ तो ऐसा बिहाइंड द थॉट समझ में आ जाए कि इस थॉट प्रोसेस के पीछे क्या है. So whenever I was writing, it is purely organically my own thought process and my own research after a long period of time, since I've been meeting very different kind of people जिनके अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सम हीलिंग मोडालिटीज, जिसके बेसिस पे मैंने ये सारी अवेयरनेस लिखी. Yeah. So, when I am scrolling through your Instagram profile, I also saw a lot of videos about the explanation about healings, and you I think sharing a videos very frequently. So I am also curious about that things as well, like what you are covering on your Instagram, and if the people follow you, then what they can able to get some benefit from you. Definitely, if they follow me on Instagram and if they go and read my book, I am sure उनकी लाइफ में बहुत अच्छे changes आएंगे,
वॉट एवर वी आर गोइंग थ्रू, जब हम किसी के एक्सपीरियंस से, किसी की अवेयरनेस के बारे में सुनते हैं, तो हमें वो एक रिमाइंडर मिल जाता है कि यस, दिस कैन बी डन। Yeah. क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं, इफ वी आर सो क्लोज्ड फॉर द न्यू थिंग्स, वी Hmm. विल नॉट बी एबल टू चेंज द लाइफ। तो अगर आप स्पेशली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाते हैं, तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, Hmm. बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और हर छोटे वीडियो में उनको उस बात का सोल्यूशन दिया है कि वो कैसे अपना थॉट प्रोसेस चेंज करके अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। Yes. सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई डू। Ji, ji. I also saw the videos and it's very short but very impactful as well. So थैंक यू। yeah. So now let's move forward to some more conversation about the book, and after that we will also do some conversation about what is happening currently in India. So and हम्म। why this is happening as of now right now. And so if people wants to buy your book, the most important question is like how they can able to find the book and where the book is available. The book is very much available on Amazon, Flipkart, Kindle, and Ananta Press. Yeah. You So can you can visit Ananta Press website. There also the book is available. yeah. So from my side, there is a request from every readers who watching this podcast. Uh, if someone wants to buy the book is easily available on Amazon and Flipkart. You can search the name of the author and you can easily find the book. And this is not Sorry. a big book, just a small book. You can just take a week of time or less than a week to finish the book, but after finishing the book you have to absorb everything, like even the one chapter, once you finish you feel that it takes a time to observe all the things to do something in your life or improve something in your life from the book. So that takes time. But this is a very like most awaited book. This kind of book we never publishing, and as of now, Namrata ma'am hasn't published this book, and this is available on Amazon and Flipkart. So buy it now. And one more request from every readers. After reading the book, please drop your feedback on Amazon as your review. You can add some images as well in the Amazon review section that like motivate the author to write the next edition or to also get some improvement from the feedbacks. Yes, ma'am. You wanted to say something to the readers, to something about your book. I would really like to reiterate that when you are reading the book, please keep your mindset open. आप बिल्कुल अपनी लाइफ को अगर बदलना चाहते हैं, बदलना एज इन हमेशा हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हैं, एंड दैट इज अ ग्राफ विच इज गोइंग टू गो अप। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आगे भी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ओपन है और आप ये समझ सकते हैं कि इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है, तो आप उसको जल्दी से चेंज भी कर पाएंगे। बट इफ यू विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ जहाँ पे मेरी मुसीबतों की जिम्मेदारी किसी और की है, तो वहां बहुत ज्यादा मुश्किल आती है अपनी जिंदगी को चेंज करने। सो आई एम श्योर आपको इस बुक में बहुत सारे ऐसे टिप्स मिलेंगे जहां पे आप अपनी हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस और अपनी वेल्थ पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और एक फुलफिल्ड लाइफ को जी सकते हैं। एवरी डे विल बी जस्ट लाइक अ पार्टी। That's great. So जैसा आपने कहा मैम कि you are the only responsible the things you are doing, कि जो आप कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं, या if there are some problem in our life then हम लोग किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो इस जैसे कि as of now in this generation प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं ड्यू टू सम लाइक इंस्टाग्राम रील्स देखने के कारण या फिर शॉर्ट टर्म मोटिवेशन रहता है उनके उसके कारण। तो आप
इन जनरेशन को क्या कहना चाहते हैं बेसिकली कि why the people need to read the book instead of watching the reels and short videos. विक्रांत, कोई भी जो इंफॉर्मेशन है और जो सिग्नल्स हैं जो हम आउटर वर्ल्ड से ले रहे हैं, वॉचिंग द रील्स, हम किसी और की लाइफ की स्टोरी देख रहे हैं या हम किसी को एक्टिंग करते हुए वॉच कर रहे हैं या कोई कॉमेडी है, इवन इफ कोई मोटिवेशनल थिंग है, तो वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे ब्रेन के लिए, और हमारा ब्रेन पूरा दिन उसको प्रोसेस करने में लगाता है. There is a lot of information which we are giving to our brains, audio, visuals, and then the thought process, and then it just absorbs it and our brain gets tired. हमारे दिमाग की एक कैपेसिटी है, जब तक हम उस मसल को डेवलप नहीं करेंगे जहां पे हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो हम उसको काम को नहीं कर सकते. हम लोग सोचते तो बहुत है पूरा दिन में कि आज हम ये खत्म कर लेंगे काम, या आज मुझे इतना परफॉर्म करना है, या आज मुझे इतने लोगों से मिलना है, या आज मुझे ये मीटिंग करना है. बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर हम अपने फोन में स्टक हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि समय रुक गया है, बट एक्चुअली में समय रुका नहीं है. वो तो चल ही रहा है, और सिर्फ हम अपने दिमाग को थका देते हैं और उसके बाद हमारी कैपेसिटी नहीं रह जाती कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए. Yeah, that So it is very much required for this generation to give some uh, slow time to the brain, not to give any information. Just sit idle with yourself, talk to yourself, and then you will get the ideas. हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, या हमारे जितने भी रिसर्चर्स हैं, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं और फिर उस आइडिया के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. अगर वो भी सारा दिन रील्स और वीडियोस देखने लग जाएंगे तो शायद कोई भी नई डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनका दिमाग भी फिर वहीं पे बिजी हो जाएगा. हमें दिमाग को खाली रखना है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाने के लिए. yeah, so it is important to bore यानी आपको बोर होना जरूरी है if you want to learn something in your life. आपके पास करेक्ट, आपको खाली समय चाहिए अपने लिए. Yeah, that is absolutely right actually. Or this kind of like topics, short topics या फिर पूरा chapter आपको मिलेगा in this book. That is why this book is important for you. Everyone's to read the book. बुक के प्राइस भी कुछ ज्यादा प्राइस नहीं है. इट्स अ इकोनॉमिकल प्राइसिंग बुक. आप उसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं इवन आप अगर एक स्टूडेंट हैं. और मैम ने जो सबसे अच्छा काम किया है वो है तो उन्होंने कोई कैटेगरी वाइज इस बुक को डिवाइड नहीं किया है. इवन हाउस जैसे मैम ने बताया कि जो हाउस मेकर हैं उसके साथ साथ में कोई टीचर हैं या फिर जो अपनी कॉर्पोरेट वर्क में कर रहे हैं सभी इस बुक को पढ़ सकते हैं. इवन एक चैप्टर उनको पूरे दिन भर उनके पूरे दिन भर को प्लान कर सकता है. दिन भर को एक अच्छा दिन बना सकता है. दैट इज व्हाई दिस बुक इज इम्पोर्टेंट. And ma'am, now some more topics about the current situation. First of all, just wanted to know something about the students because क्योंकि आप एक लिटरेचर फील्ड में तो हैं ही उसके साथ साथ में आई थिंक आपकी पर्सनल बैकग्राउंड भी टीचिंग से रिलेटेड है. सो करेक्ट. इज वाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट रहती है और अगर स्टूडेंट पर इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसका असर देश पर आगे जाके क्या पड़ेगा. थी हमारे स्टूडेंट्स ही हमारा भविष्य है. जो आज बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च में जा रहे हैं, या अपने आप को एजुकेटेड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों के ऊपर है कि वो कितने टैलेंटेड निकलेंगे, कितने डेवलप कर पाएंगे चीजों को. तो अगर बच्चे ही ऐसा सोच रहे हैं कि पॉलिटिकली हम कैसे उन चीजों को ओवरकम कर लें या हम कम मेहनत करके आगे बढ़ जाएं, तो आई थिंक देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. आपको अपना जो काम है, आपकी जो जिम्मेदारी है, जिस लाइफ की स्टेज में आप हैं, उस समय जो करना आपको बनता है वो आपको करना ही पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस आप सच में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं. अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह जीना चाहते हैं,
तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, 10 से 6 की नौकरी भी कर सकते हैं, बहुत कम सैलरी में भी अपना गुजारा कर सकते हैं। बट अगर आपकी एस्पिरेशंस हाई है, तो आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इस समय मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ऐसे ही बच्चों की जिद पे हमारे देश की तरक्की निर्भर करती है, you know? Now, and now the topic something about the Jantar Mantar. You are aware about the Delhi and the protest that is happening करेक्ट। in India as of now. So, जो स्टूडेंट्स जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो वो एक कहाँ तक आपके हिसाब से एक राइट डिसीजन था स्टूडेंट्स का? और अगर ये प्रोटेस्ट ज्यादा लंबे समय तक चलती है, तो क्या ये स्टूडेंट्स के लिए सही में अच्छा है? सी बेसिकली जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो डेफिनेटली पेशेंट भी हैं। उनके अंदर ये बात की पेशेंस भी है कि अगर कुछ भी दुर्घटना हो गई, एग्जाम नहीं हो पाया जिसकी वजह से उनकी लाइफ में थोड़ा डिले हो गया, तो वो डेफिनेटली थोड़ी पेशेंस रख के उस चीज का वेट कर लेंगे कि हमारे को दोबारा मौका मिलेगा और हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। प्रोटेस्ट करना, अपनी आवाज उठाना, डेफिनेटली ये सही है, लेकिन उसको गलत तरीके से वहां पे पेश किया जा रहा है, जो कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसका फायदा उठा रही हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो वो अपने भविष्य को लेके बहुत ज्यादा सतर्क है, चिंतित है, और वो कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए 100 बार सोचेंगे अगर वो अपनी लाइफ के लिए सीरियस है और वो अपनी फैमिली के लिए और अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स कभी भी अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे। अपनी जिंदगी रहेगी तो उनका हक उनको जरूर मिल जाएगा, लेकिन अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो वो किसके लिए लड़ेंगे? या दैट इज एब्सोल्युटली राइट। और मेरे हिसाब से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं एज ऑफ नाउ, करंट सिचुएशन के हिसाब से, वहाँ पे फूड शेल्टर भी अब इजीली अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब जी, ये, तो ये इसको फंड कौन कर रहा है? हाँ, एक्चुअली जो फंडिंग फंडिंग का तो मुझे नहीं पता आइडिया, बट कहना ये है कि जो फूड डिलीवरी हो रही है वो डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट लोग कर रहे हैं, इवन इंटरनेशनली भी हो रही है, ठीक है, फूड आ रहे हैं। लेकिन बट नाउ द बिग प्रॉब्लम इज लाइक इफ दे आर गेटिंग सो मच फूड, प्रॉपर शेल्टर, देन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हो जाएगा कि जिनके पास पढ़ाई के लिए उतनी सफिशिएंट जगह नहीं है, कंफर्टेबल स्पेस नहीं है, वो उनके लिए वो एक कंफर्टेबल स्पेस बन जाएगा प्रोटेस्ट जहाँ पे कर रहे हैं। एंड देन तो वो, ये बहुत ही, हाँ, ये थोड़ा ठीक सा नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये सिचुएशन बहुत ही टेम्परेरी सिचुएशन है। और मुझे लगता है इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि कोई भी मुद्दा जब उठता है उसका सल्यूशन निकाला जाता है। हमारे देश की सरकार उतनी सक्षम है कि किसी भी चीज का सल्यूशन निकाल के उनको वहां पे सेटिस्फाई किया जाएगा। और जो सबके हित की बात होगी, जो स्टूडेंट्स के हित की बात होगी, उसका फैसला लिया जाएगा। और जो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पे बैठ के और अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं और अपने माइंडसेट को एक ट्रॉमा दे रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हमारे साथ कभी हुआ था, आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू फेड इजीली। ये जो मेमोरीज हमारे माइंड में बन जाती है, प्रोटेस्ट वाली, लड़ाई झगड़े वाली, पुलिस के साथ हाथापाई वाली, इसकी मेमोरीज बहुत जल्दी हमारे दिमाग से जाती नहीं है। और ये सब करने के बाद अगर वो उम्मीद करें कि उनका पढ़ाई में वापस से मन लग रहा है या वो अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, वो लिटरली अपने आप को भटका रहे हैं। एक टेम्परेरी सिचुएशन का एक परमानेंट असर डाल रहे हैं अपनी जिंदगी में, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया नहीं। या सो एक्चुअली दिस इज अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन जो आपने बताया। मूविंग फॉरवर्ड टू द टॉपिक ऑफ द बुक, ओके। अब इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि ऐसे सिचुएशन सभी के लाइफ में कई बार आते हैं। कई बार जैसे कि कपल्स की लड़ाई होती है, ठीक है, डाइवोर्स अभी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, एंड आफ्टर दैट students and the student as of now bullying culture is very prominent, and that is happening in every states, every corner of the world as well. And also in this kind of situation, how this book can able to help to those particular persons.
See, this book is basically a reminder to you that you are special. Hmm. This book is a reminder to every person that you are capable of everything. And God has blessed you with everything that you would like to have. The only thing is that you need to acknowledge कि मैं blessed हूँ. मेरे पास एक अच्छी बॉडी है, मेरे पास एक अच्छा दिमाग है, मेरे पास पॉसिबिलिटीज है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. लाइफ इज अ चॉइस. लेकिन अगर मुझे मेरे बारे में श्योरिटी नहीं है, मुझे सामने वाले से वैलिडेशन चाहिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं जो किसी को बुली कर रहे हैं, वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे से वैलिडेशन के चक्कर में अपने आप को कम समझने लग जाते हैं कि अगर सामने वाले ने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसका मतलब मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ. अगर सामने वाले ने मेरा केयर नहीं किया, इसका मतलब मैं कुछ तो कम हूँ. अगर मैंने बहुत ज्यादा अच्छा किसी के लिए नहीं किया, इसका मतलब वो मुझसे बुरा मान जाएगा. तो मुझे अपने आप को पीछे रख के सामने वाले को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मेरा ये रिश्ता बच पाएगा. लेकिन अगर आपके रिश्ते में दूसरा इंसान आपको लिटरली केयर नहीं कर रहा है, या आपको वैलिडेट नहीं कर रहा है, या आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है, या आपको हर समय नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप उस रिश्ते को नहीं बचा सकते. you know so the only thing is, when you value yourself, when you acknowledge that you are special, when you acknowledge that you are already beautiful and you are already handsome and you can make a difference in your own life, तो मुझे लगता है कि रिश्ते भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे. और दूसरा, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आपको ये बता सकता है कि हाँ, आप अकेले भी रह सकते Yeah, it depends. It totally depends on you, okay, as an individual person, what you can do in your life, and that is according to your life will be going. हैं. Uh, एग्जैक्टली. yeah. सो जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने रिश्तों में, अपने दोस्तों में, और सामने वाला जो दूसरा इंसान है वो भी किसी ना किसी स्ट्रगल में है, मेंटली इमोशनली वो भी वीक है, उसको भी नहीं पता वो कितना केपेबल है, तो वो भी आपके जरिए अपने आप को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है. एट द एंड हम सब रिश्तों में एक भिखारी की तरह हो जाते हैं, अपना अपना कटोरा लेके सब चले जाते हैं कि तुम भी मुझे प्यार दो या तुम मुझे प्यार दो. बट अगर आपके पास अपना खुद का वो फुलफिलमेंट है कि आप समझते हैं कि आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो वो आपके लिए भी अच्छा है और आप उस रिश्ते में भी कुछ दे पाएंगे. Yeah. Or for that we have to like manage our expectations. अगर एक expectation के management एक अच्छा है, so हम लोग ये situations को manage कर सकते हैं. I'm डेफिनेटली. या सो मैम, आपकी बुक के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, ठीक है. वी ऑल्सो नाउ अवेयर अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आप वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, दैट इज एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग फॉर लॉट ऑफ द थैंक यू. रीडर्स, या फिर जो भी अभी करंट सिचुएशन में है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो एक व्यू भी आपकी वीडियो पर आ रहा है वो कौन सी सिचुएशन पर आपकी वीडियो देख रहा है. और चांसेस ये हैं कि आपकी वीडियो देखने के बाद उसके लाइफ में बहुत चीज चेंज हो जाएगी. एंड आई थिंक फ्रॉम द कमेंट सेक्शन यू लिटिल मोर अवेयर अबाउट दिस, कि लोगों को कैसा लग रहा है आपका कंटेंट. बट आई थिंक अगर एक व्यू भी कंटेंट पर आ रही है, तो वो एक व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है. And from this podcast, I request like we will drop a Instagram channel of the author, and you can follow them as well on Instagram, and we will drop on our story as well. So do follow to the author, because author is doing very well, hardworking, and sharing a lot of important things that can change your life. Yeah. Now, ma'am, I just want to know some last few lines from the book, like why the people needs to buy your book from just a few lines. Please explain something about your book. Then we will ending this podcast. This book is definitely going to bring a beautiful change in your life. Your thought process will get changed. You will be able to acknowledge your own qualities.
जो शायद आज तक आपको नहीं पता थी. You will be able to use your time very constructively. इस book में एक chapter है, time is equal to abundance. So that is definitely going to teach you that how effectively you can use your time, how confidently you can do your work, and then at the end of the day, whatever you achieve, take it to the next day, and you will be able to achieve all your goals. Yeah. So we will also give a task. Uh, uh, whoever the buy the book, जो भी आप बुक आपकी बाई कर रहे हैं, just take a screenshot or take a photo of third page, a third chapter, ma'am shared to you that the exact title, and comment on Instagram with photo, so that one lucky winner will get a two signed copy from the author, and also who will be watching this podcast till the end, we will also do a giveaway contest where we will be going to share our two copies with you. You just have to follow the author and mention your three friends, and after that, from the comment section, we will pick up two winners and we will share the two copies at their address. Yeah. So that is all from my side, ma'am. And whenever we are going to release a new book, or after the success from this book, we will definitely do a one more podcast, because in this podcast we know about your book, but we wanted to know more things about the philosophy and about the teaching you are sharing. But for that, we need to know more insights from the book, and we once we get some feedbacks from the readers, जो भी questions हमारे पास आएंगे readers से, we will take all the questions, and in the next podcast we will discuss all the things. Sure, sure, Vikrant. Thank you so very much. Thank you for the wonderful questions.